Hello students, my name is Jyoti and you are watching Math 5 channel. Today I am going to explain the important derivation of the class 11th. This derivation is very important for the point of examination. Please subscribe my channel and watch continuous my channel. मैं 11th के सारे लॉन्ग डेरिवेशन अपने लॉन्ग डेरिवेशन का वीडियो दे दूंगी, आप कंटिन्यूस वॉच करो। अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दिखेंगे तो मैं ऑब्वियसली इसके नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और अच्छा, शॉर्ट्स क्वेश्चन जितने 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन मैं जनरली जो है शॉर्ट्स पे देती रहती हूँ। 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके वहाँ से हो जाएंगे। ओके, टुडेज क्वेश्चन, वेरिएशन ऑफ जी। जी की वैल्यू जो मैक्सिमम है वो अर्थ के सरफेस पे होता है। अर्थ के सरफेस पे होता है मैक्सिमम। अबव द सरफेस डिक्रीज करता है और बिलो द सरफेस ऑल्सो डिक्रीजेस। ऐसा नहीं है कि अर्थ के अबव द सरफेस गए तो डिक्रीज किया तो बिलो द सरफेस अगर चले गए तो इंक्रीज कर जाएगा, ऐसे नहीं होता। मतलब दोनों ही कंडीशन में डिक्रीज करता है। ठीक है, कब मैक्सिमम होता है? सरफेस ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अबव द सरफेस ऑफ अर्थ वैल्यू ऑफ जी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। देखो, ये सरफेस ऑफ द अर्थ, ये ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है कि वैल्यू ऑफ या वेरिएशन ऑफ जी एट द एल्टीट्यूड। वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी एट एल्टीट्यूड। दोनों में से कुछ भी लिखा हो सकता है। तो लेट अस कंसीडर ए अर्थ इज like a sphere and radius of earth that is r, and above the h height we have to find out the value of g. Above the h height, this height is h and this is b, which is the surface of the earth. Let radius of earth is equal to r. OB is equal to r. So OA is equal to h plus r. Mass of earth is equal to capital M. So value of G at point B, that is G is equal to Gm by R square. उसके बाद करेंगे वैल्यू ऑफ G at point A। value of G at point B, that is G dash. Consider that is G dash. G dash is equal to G M by R plus H whole square. This is equation second. Dividing equation second by 1, dividing equation second by 1, what will happen? G dash by G is equal to G dash, value of G dash Cm by R plus H whole square by Gm by r square. Gm cancel, so G dash
by G is equal to 1 by R plus H whole square by 1 by R square. G dash by G is equal to R square by R plus H whole square. ये क्या होता है? If a fraction in the form a, b, c, d, then it become a d into b c. So g dash is equal to g, और इसको मैं ऐसे लिख दूं r plus h by r होल स्क्वायर, और मैं इसको ऐसे लिख दूं g 1 plus h by r to the power -2, और बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर कर दूं g इज इक्वल टू 1 minus 2 h by r. दिस इज रिक्वायर्ड डेरिवेशन. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट मैं करूंगी बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ. वैल्यू ऑफ स्मॉल g बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ और एट द डेप्थ. वैल्यू ऑफ स्मॉल g below the surface of earth. और ये हो सकता है वैल्यू ऑफ g at depth. Let us consider earth is like a sphere, and at d distance we have to find out from the surface of the earth d depth. At the d depth we have to find out the value of g. Okay, so the radius center of the earth is O, and radius of earth, that is OA, that is equal to R, and this is the another point where we have to find out the value of small g. Let AB is equal to D and OA is equal to R, radius of earth, and OA is equal to not R, OB is equal to R, and OA is equal to R plus D. सही गड़बड़ कर दिया. OA is radius, right? कंफ्यूज कर लिया. OA is radius and OB is equal to R minus D. ठीक है, R minus D. तो क्या है कि when the radius changes, the mass will change. Let us consider there are two spheres. The one sphere that is the having radius OB, and another sphere that is the having the radius OA. One sphere having radius OB and another sphere that is having radius OA. It means there are two spheres, one is smaller and other is larger. So the radius of mass of larger sphere या mass of earth is equal to 4 by 3 pi r cube into rho, where rho is the density of earth. Rho is density of earth.
रो इज डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो ये हो गया मास ऑफ अर्थ। छोटा वाला स्मॉलर स्फीयर के लिए करेंगे एट पॉइंट बी फॉर स्मॉल स्फीयर mass is equal to m dash and that is 4 pi 3 pi r minus d whole cube rho. Value of g at a, g is equal to g m by r स्क्वायर, और जी एम की वैल्यू निकाला था मैंने 4 बाई 3 पाई आर क्यूब रो बाय आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल हो गया, तो जी 4 बाई 3 पाई आर और रो। ये इक्वेशन फर्स्ट कर दो, जैसे प्रीवियस वाले में किया था वैसे ही इसको फर्स्ट कर दो। नाउ द वैल्यू ऑफ जी एट पॉइंट बी पे ले, तो इसको मैं जी डैश ले लेती हूँ और यहां पर हो जाएगा जी एम डैश बाय रेडियस इसका क्या हो गया आर माइनस डी का स्क्वायर। तो जी डैश इज इक्वल टू जी 4 बाय 3 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब मतलब आर माइनस डी होल क्यूब इंटू रो बाय आर माइनस डी का स्क्वायर। ये स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा जी डैश जी 4 बाई 3 पाई आर माइनस डी इंटू रो। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। जी डैश बाय जी या डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय 1, इट बिकम जी 4 बाई 3 पाई आर रो बाय जी इंटू 4 बाई 3 पाई आर माइनस डी इंटू रो। तो ये देखो सारे टर्म्स, तो ये सारे तो कैंसिल हो जाएंगे, पाई पाई रो कैंसिल। तो जी डैश इज इक्वल टू आर बाई आर माइनस डी, यही बच रहा है। ये यहाँ पर उल्टा हो गया है, जी डैश उल्टा रखा गया, जी 4 बाई 3 पाई आर माइनस टी रो है और जी की वैल्यू है 4 बाई 3 पाई आर रो। ये कैंसिल, सारे कैंसिल हो जाएंगे और ये बच जाएगा आर माइनस डी बाई आर, जी डैश बाय जी, और जी डैश इज इक्वल टू जी, और इसको लिख देते हैं 1 माइनस डी बाई आर, और दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। देखो यहाँ पर भी जो है वैल्यू ऑफ जी जो है वो डिक्रीज कर रहा है। ओके, थैंक यू।